वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री के करीब 85 मिनट के भाषण में कई वर्गों के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए गए, तो वहीं कई जरूरी सामान भी सस्ते हुए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय दिया गया। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसके अलावा कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया है। ऐतिहासिक पल। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की और राष्ट्रपति ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो कुछ खास तस्वीरें। आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं पूरे देश की दिशा तय करता है। आज ही के दिन ये पूरा खाका पेश किया जाता है और इस ऐतिहासिक दिन की कुछ खास झलकियां आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रही थी। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी। Propose to allow of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. Giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only.
I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगा। टीसीएस की दर और कम करने का प्रस्ताव, वित्त मंत्री की ओर से कुछ खास बड़ी बातें कही गई, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय दिया गया है। टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर। अनिवासी के लिए आयकर की 5 साल की छूट। कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर लगेगा 22% टैक्स। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर 30% टैक्स लगेगा। तेंदुपत्तों पर टीसीएस घटाकर 2% किया गया। वायदा सौदों पर एसटीटी 0.5% बढ़ाया गया। मैट दरों को कम करके 14% किया गया है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। देश में रोग भार कम करने पर सरकार का फोकस। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। 4,000 ई बस चलाने का प्रस्ताव। 3 नए आयुर्वेद संस्थान देश भर में स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार राज्यों को 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करेगी। पर्यटन के क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावनाएं। मत्स्य पालन के लिए 500 अमृत जलाशय। पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण होगा। महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम। पीएम दिव्यांग केंद्रों को और मजबूत बनाएंगे। दिव्यांगों के लिए नए सेंटर बनाने की योजना। कृत्रिम अंगों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर। किस क्षेत्र को कितना बजट दिया गया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास और गृह कार्य के लिए कितना बजट दिया गया, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इसके साथ ही किसान कल्याण, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए, शहरी विकास, आईटी और दूरसंचार, वाणिज्य और उद्योग, सामाजिक कल्याण को भी, वैज्ञानिक विभाग, कर प्रशासन, विदेश कार्य, वित्त विभाग को। इन 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और स्थिरता पर फोकस रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग, पुराने उद्योग और छोटे उद्योग यानी एमएसएमई, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन, जूते, चमड़ा, ईवी बैटरी सस्ते हुए हैं। कैंसर की दवाइयां, 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां, विदेश यात्रा, सोलर से जुड़े सामान, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। तो वहीं सिगरेट, तंबाकू, कोयला, स्क्रैप, शराब और खनिज महंगा हुआ है। मोबाइल फोन, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव सस्ते हुए हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। टीसीएस की दर और कम करने का प्रस्ताव है। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए नई स्कीम। एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले भर सकते हैं रिटर्न। रोग भार कम करने पर फोकस। रोगों के रोकथाम पर जोर। हेल्थ स्पेशल क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर फोकस रहेगा। भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा। टेस्टिंग लैब को अपग्रेड करने की योजना है। साथ ही नक्षत्र विज्ञान को बढ़ाने पर फोकस। जामनगर में WHO केंद्र अपग्रेड होगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। दिल्ली वाराणसी में कॉरिडोर बनेंगे। मुंबई, पुणे से हैदराबाद कॉरिडोर बनेंगे। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सरकार राज्यों को 5 विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद मिलेगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।
पर्यटन के क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावनाएं। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड होंगे। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड होगी। 500 अमृत जलाशय मत्स्य पालन के लिए। पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण होगा। काजू कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम। अखरोट बादाम का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। वित्त मंत्री ने रेयर अर्थ के लिए बड़ी घोषणा की है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर। दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कॉरिडोर का नाम रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर होगा।